اللہ والے کے پاس جا کے استاد محترم نے کہا آپ مجھے بیعت کر لیں. میرے سر پہ خلافت تو شاہ جی نے رکھی تھی لیکن پہلے میرے شیخ کا سایہ میرے سروں پہ تھا. ایسا مرد کلندر جو خود سادار شجر بن چکا ہے لیکن پھر بھی وہاں پہ جا کے کہا مجھے آپ بیعت کر لیں, میرے سر پہ سایہ قائم ہمیشہ رہے. پہلے میرے شیخ سید جاوید حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا سایہ تھا, اب وہ دنیا میں نہ رہے, اب آپ مجھے اپنا بیعت کر لیں. وہ اللہ والا, پہچاننے والا, وہ جوہری صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے والا, وہ کھٹا وہ کھوٹا اور کھرے کی پہچان رکھنے والا, وہ ہیرے اور پتھر کو پہچاننے والا, اس کی نظر دیکھنے والی, اسے اللہ کی ذات نے وہ قوت عطا کی ہوئی جو عام انسانوں کو حاصل نہیں. استاد محترم کو دیکھا تو دیکھ کے کہنے لگے کہ آپ کی شان بہت بلند ہے, میں نے آپ کو بیعت نہیں کرنا ہے, آپ کا مقام بہت بلند ہے. استاد جی نے اصرار کیا کہ نہیں آپ نے مجھے بیعت کرنا ہے, آپ کے پاس بڑی نسبتیں ہیں, آپ کے اندر بڑا کمال ہے. تواضع ایسی کہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھ رہے تھے. وہاں جا کے اصرار کیا, اس اللہ والے نے پہلے اپنا ہاتھ دیا کہ چلو آپ کے اصرار پہ آپ کو بیعت کرتا ہو, پھر بیعت کرتے ہی فوراً کہا کہ میں آپ کو اپنا خلیفہ بھی بناتا ہوں. انسان بیعت کرتا ہے, ہمیں استاد جی سے بیعت ہوئے 18 سال ہو چکے ہیں, ابھی تک وہ اسباب چل رہے ہیں, نکھار آ رہا ہے. خلافت اتنی آسانی سے ملتی نہیں ہے لیکن یہاں پہ دل اس قدر محتر تھا, اس قدر منور تھا. اللہ والے کی نظر نے دیکھا, ادھر ہاتھ بڑھایا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لے, ادھر سر پہ پگڑی سجا کے کہا تیری بیعت پوری ہو چکی ہے, تیرے سر پہ خلافت کا تاج رکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ عام سا بندہ ہے, اپنے آپ کو مٹائے رکھا ہے. کسی عارف نے خوب کہا تھا اللہ والے دنیا کے عام انسانوں کے اندر پھر رہے ہوتے ہیں, پہچان نہیں ہوتی کہ یہ کون اللہ والا ہے, اس کا مقام کتنا ہے. اگر اس کے مقام کو پہچاننا ہو, کسی اللہ والے کا اس کے ساتھ تعلق دیکھ لینا, اللہ والا اسے کیسا سمجھتا ہے, اللہ والا اسے کیا مقام دیتا ہے, پھر اس کا مقام مرتبہ قائم کر لینا. یہ استاد محترم ہیں, حضرت شاہ جی نے ان کے منصب کو دیکھا, ان کے دل کی صفائی کو دیکھا, خلافت کا تاج رکھا. وہاں ثوابی میں پہنچے تو فوراً بات کر کے خلافت ان کے سر کے اوپر سجا دی کہ آپ پہلے سے ہی پاکیزہ ہو, آپ پہلے سے ہی منور ہو, دل بہت روشن ہے, آگے فیض جاری کرنا ہے. میں آپ کو سبق نہیں دوں گا کہ آپ نے سلسلے کے سبق یاد کرنے ہیں پھر آپ میں کمال آئے گا. کہا دل بہت روشن ہے, آپ کامل ہو, آپ کے سر پہ خلافت سجائی جائے گی, آپ نے آگے فیض جاری کر دی. صرف یہی پہ بس نہیں ہے. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. یہ ساری کی ساری باتیں آپ حضرات کو بتائی کیوں جا رہی ہیں؟ یہ استاد جی نے نہیں کہا, استاد جی سے اجازت لی ہے تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ ہم بیٹھے کہاں پہ ہیں, ہم نے یہاں سے لینا کیا ہے. ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ یہاں کیا کیا چیز رکھی ہوئی ہے تو کیا لیں گے ہم. اس سال عید کی چھٹیاں ہوئی, عید کے بعد استاد جی کا سفر ہوا ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف. وہاں ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر خانقاہ غفاریہ نقشبندیہ, وہاں پہ ایک اللہ والے ہیں حضرت مولانا طیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ, تو وہاں بھی جا کے استاد جی نے کہا ان کی زیارت کے لیے چلتے ہیں. وہاں ان کی زیارت کے لیے گئے, کچھ دیر استاد جی کے پاس وہ بیٹھے, استاد جی ان کی خدمت میں بیٹھے, کچھ باتیں ہوئی. تو میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا تھا کہ جوہری فوراً پہچان لیتا ہے کہ یہ پتھر ہے کہ ہیرا ہے, اس کے اندر کیا کیا کمال چھپے ہوئے ہیں. وہاں ان کے پاس چاروں سلسلوں کی خلافت تھی. اللہ کے نبی سے تصوف کی لائن کے 4 سلسلے ہیں جو مضبوط بھی ہیں, مستند بھی ہیں. سلسلہ قادریہ ہے, نقشبندیہ ہے, چشتیہ ہے, سہروردیہ ہے. وہ ایسا ولی کامل ڈیرہ اسماعیل خان کی سرزمین پہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 سلسلوں کی خلافت حاصل تھی. استاد جی کو دیکھا, بنا مانگے استاد جی سے کہا کہ میں 4 سلسلوں کی خلافت آپ کو دیتا ہوں. میں اور آپ کسی اللہ والے کے پاس جائے تو ہمیں سبق ملتا ہے 500 مرتبہ اللہ اللہ کر دیا کرو,
खिलाफत नहीं दी जाती, वहां एक सिलसिले की खिलाफत नहीं, चारों सिलसिलों की खिलाफत दे के कहा कि पैगंबर का फैज चारों सिलसिलों का आपने आगे जाने देना। वहीं डेरा इस्माइल खान के अंदर एक दूसरी खानका थी, वहां पे मौलाना गुलाम शबीर अहमद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, उनके पास भी पैगंबर की चारों खिलाफतें थी। चारों खिलाफतें लेके बैठे हुए उनसे उस्तादी मुलाकात के लिए गए कि इस इलाके में अल्लाह वाले हैं, उनकी सोहबत में जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, हमें वहां से कुछ फैज मिल जाएगा। ये अल्लाह वाले हैं जिनकी जूतियों में भी अल्लाह की जात ने बहुत कुछ रखा हुआ है। वहां उनसे मुलाकात के लिए गए, थोड़ी देर की मुलाकात थी, वहां पे बातचीत हुई। बातचीत के दौरान उस अल्लाह वाले की नजर ने भी इस मर्द कलंदर के कमाल को देखा, तो देखते ही कहा कि मेरे पास भी चारों खिलाफतें हैं, मैं चारों खिलाफतें आपको देता हूं। चारों सिलसिलों की चारों खिलाफतें उस्ताद जी के पास है। यूं कह लो कि दिल नूर से भरा हुआ है, अल्लाह की जात ने आगे फैलाने के लिए चुन लिया है। पास बैठने वाला महरूम नहीं रह सकता। वही बात जो पहले अर्ज की थी, हम तो माइल बा करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई रहरो मंजिल ही नहीं। ये तो उस्ताद मोहतरम थे। हम हर माह उस्ताद जी के पास आते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, अल्लाह वालों से फैज लेते हैं। फैज के चार मर्तबे हैं कि चार तरीके से फैज लिया जा सकता है। हम उस्ताद जी से कौन से तरीके का फैज ले रहे हैं और हमें कौन सा फैज लेना चाहिए? पहला फैज जो बुजुर्गों की तवज्जुहात होती है उसे निस्बत इनकासी कहा जाता है, फैज इनकासी कहा जाता है, जिसकी मिसाल ऐसे हो सकती है, कोई आदमी इतर लगा के आए, बहुत खूबसूरत इतर हो, कपड़ों से खुशबू महक रही है, बदन से खुशबू महक रही है, महफिल में आके बैठ जाता है, हम उसके पास आके बैठते हैं, हमारा दिलो दिमाग मुअत्तर हो जाता है। हम आधा घंटा बैठते हैं, 15 मिनट बैठते हैं, जितनी देर उसके पास बैठते हैं, उसकी सोहबत में बैठते हैं, दिल दिमाग मुअत्तर रहता है। वहां से उठ के चले जाते हैं, इधर सोहबत से निकले हैं, मजलिस से निकले हैं, महफिल से निकले हैं, फौरन वो खुशबू खत्म हो जाती है। उस मजलिस तक महदूद थी कि हम वहां पे आए, वहां से उठ के जाए तो फिर हमारे पास कुछ ना हो। जितनी देर सोहबत में बैठे हैं वहां खुशबुएं मिल रही है, सोहबत से निकलते ही वो कहां हम कहां, खुशबू अपनी जगह पे रह जाती है, हम खाली अपने घरों को लौट जाते हैं। दूसरी फैज जो मर्तबा है फैज का, उसे इल्काई कहा जाता है। इल्काई की निस्बत ऐसे हो सकती है जिसकी मिसाल सूफिया ने यूं दी है कि वो ऐसे होती है जैसे इंसान बुझा हुआ चिराग अपने पास लेके आए, फिर आगे पास बैठे अल्लाह वाले के, उसके पास आग है, वो हमारे चिराग को आग लगा देता है, रोशन हो जाता है, तो हम अपने घर को लेके चलते हैं। थोड़ी देर तक हम उस चिराग से रोशनी पा लेते हैं, जितनी देर तक वो चिराग जलता रहेगा हमें रोशनी मिल जाएगी, लेकिन ये भी कोई देर पानी है, थोड़ी देर के बाद वो चिराग खत्म हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद खुद ब खुद खत्म ना हुआ तो रास्ते के अंदर कोई ना कोई सदमा पहुंच जाता है, कोई ना कोई उसके मुखालिफ चीज मिल जाती है, आंधी आ जाती है, हवा आ जाती है, वो चिराग को बुझा देती है। अल्लाह वालों की सोहबत में आए, थोड़ी देर उनकी सोहबत में बैठे, फैज मिला, असर हुआ, उनकी बातों का दिल मोह हुआ, अल्लाह की जात से मुलाकात का जज्बा पैदा हुआ, अल्लाह की जात से बातों का जज्बा पैदा हुआ, जिंदगी रब के हुक्मों के मुताबिक गुजारने का जज्बा पैदा होता है। इसी जज्बे के साथ, इसी जुनून के साथ इंसान सोहबत से निकलता है, दिल वैसे ही नरम है, दिल वैसे ही जज्बे से सरशार है, लेकिन थोड़ी देर के बाद घर जाता है, टीवी चलता है, कोई ड्रामा देख लेता है, बदनजरी हो जाती है, कान में गाने की आवाज आती है, दिल उस तरफ माइल हो जाता है, वो सारे के सारे जज्बात रफू हो जाते हैं, वो सारे के सारे शौक मुंडमन हो जाते हैं। ये निस्बत तो थी, फैज तो था, लेकिन मुस्तकिल न था। थोड़ी देर के लिए कुछ बातें ली है, जज्बात बेदार हुए, बाहर निकल के अगर कोई सदमा पहुंचा वो सारे के सारे जज्बात खत्म हो जाते हैं। और तीसरा फैज का मर्तबा होता है जिसे इस्लाही कहा जाता है। इसकी मिसाल ऐसे दी है जैसे कोई नहर चल रही हो, उस नहर से पानी लेके
इंसान अपनी खेतियों को आबाद करता है, लेकिन फिर ऐसी कोशिश करता है उस नहर से एक खाला निकाल लेता है, अपनी जमीन के अंदर एक कुआं बना लेता है, वहां से पानी आता रहता है, जब दिल करता है पानी की जरूरत होती है पानी लगा लेता है, फसलें आबाद हो जाती है, फल उगते हैं, फूल उगते हैं, सब्जियां उगती है, वहां सारी की सारी जमीन लहलहाना शुरू हो जाती है। ये ताल्लुक अल्लाह वाले से होता है, जिसे ताल्लुक को बैत कहा जाता है, इस्लाही ताल्लुक कहा जाता है। हम यहाँ पे बैठते हैं, ताल्लुक अल्लाह वाले से कायम कर लेते हैं कि जी मैंने आपके हाथ में हाथ दिया है, क्या मतलब मैंने आज के बाद आपको अपना पीर बना लिया है। हम भी कहते हैं जी हमारे पीर है। पीर होता क्या है यार, साढ़े पीर बड़े करने वाले ने, वो हवा चोड़ लेंगे ने, और दिन रात कर देंगे ने, सूरज रोक सकते हैं, सितारे जमीन पे ले आते ने। अरे तुम्हारा उनके साथ निस्बत जोड़ने का मकसद क्या है? कहा जी सानू तो कोई मतलब नहीं, जो साढ़े बच्चे बीमार हो उन्होंने फूक मराई दिए, कम हो जाते ने, कारोबार ठप हो जान, जाके दुआ कराई दिए, कारोबार चल पेंदे ने, मुसीबत गिरे हुए होंगे उन्होंने कोल जाइदा, जाके सिर्फ नजर हुंदी है उन्होंने सारिया मुसीबत दूर हो जाती है। लोगों पीर इसलिए होता ही नहीं है हमारी दुनिया की मुश्किलें दूर करे, पीर इसलिए होता है कि हम जैसे गुनाहगारों को अल्लाह का नेक बंदा बना दे। पीर इसलिए पकड़ा जाता है कि मेरे अंदर की बीमारियां ठीक हो जाए। मैं नमाज तो पढ़ लेता हूं, मेरे अंदर का हसद नहीं जाता, मेरे अंदर बोझ की बीमारी है वो नहीं जाती, मेरे अंदर तकब्बुर है वो खत्म नहीं होता, मैं अपनी सोच से खत्म करना चाहूं तो भी नहीं होता। इसके लिए किसी पीर कामिल को पकड़ना जरूरी होता है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने एक वाक़या लिखा है, फरमाने लगे कि मेरे वालिद मोहतरम मेरे शेख मुफ्ती शफी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनका एक मुरीद था, जब उनकी मजलिस होती जिक्र की इस्लाही मजलिस होती तो उसमें आता, हर मजलिस में हाजिर होता। कुछ देर के बाद उसने एक काम करना शुरू किया, जब सारे के सारे आदमी सारे के सारे मुरीदीन मजलिस में आके बैठ जाते, वो जूते सबके सीधे करना शुरू कर देता, हर मजलिस में हर आने वाले का जूता सीधा कर दे। कैसी तौफीक हासिल है। मुफ्ती साहब ने एक दिन देखा तो उसे बुलाया, कहने लगे इधर आ, ये तो काम क्यों करता है, किसके कहने पे करता है? कहने लगा जी मेरे दिल में तकब्बुर बहुत था, मैंने उस तकब्बुर को खत्म करने के लिए ये काम चुना है कि जब सारे के सारे लोग आके बैठ जाएंगे मैं सबके जूते सीधे किया करूंगा। अब मैं और आप सोचे तो वाकईतन बहुत हल्का काम था जिससे तकब्बुर खत्म होता है, लेकिन वली कामिल हो, डॉक्टर हो, मुआलिज हो, वो बताया करता है कि ये ठीक होता है कि नहीं होता है। मैं बीमार हो जाऊं, कमजोर हो जाऊं, दिल करता है कि यार बकरे का गोश्त खाऊं ताकत आएगी, डॉक्टर कहता है अभी तेरा मैदा कमजोर है, तूने गोश्त नहीं खाना है। कोई भी उसे गलत नहीं कहता। मुफ्ती साहब फरमाने लगे कि तूने तकब्बुर को खत्म करने के लिए यह काम शुरू किया था, इस अमल की वजह से तेरे अंदर तकब्बुर ज्यादा पैदा हो रहा है। तू समझ रहा है कि मैं बहुत अपने आप को नेक बना रहा हूं, मैं लोगों से अपने आप को हल्का समझता हूं, ये तो तकब्बुर और तेरे अंदर आ रहा है। तूने आज के बाद ये काम नहीं करना, अपनी मर्जी से इलाज करोगे तो अपने आप को नुकसान पहुंचा बैठोगे। हालांकि अकल कहती है कि काम उसने ठीक किया था, लेकिन किसी से पूछे बगैर किया था तो नुकसान हो रहा था। जिस बीमारी को खत्म करना चाहता था वो बीमारी खत्म नहीं हो रही थी, बढ़ती जा रही थी। हमने वली को हाथ पकड़ना है, हमने किसी की बैत होना है। बैत होने का मतलब ये होता है कि मेरे अंदर तकब्बुर है तो मैं अपने शेख को बताऊं, शेख नेकियां तो कर लेता हूं, नमाज तो पढ़ लेता हूं, रोजा तो कर लेता हूं, पीर जी मेरे अंदर तकब्बुर क्यों बढ़ता जा रहा है? फिर वो शेख बताएंगे, फिर वो पीर बताएंगे कि आपने ये अमल करना है, इसकी बरकत से अल्लाह ताला आपके अंदर से तकब्बुर निकाल देंगे। मैं सब कुछ करता हूं लेकिन बदनजरी नहीं जाती, मैं सब कुछ करता हूं झूठ की आदत नहीं जाती, मेरा अपने घर वालों के साथ ताल्लुक अच्छा नहीं रहता, मैं बहन भाइयों के साथ अच्छे मामलात नहीं करता, हालांकि नमाजें मेरी पूरी है, ज़कात सारी देता हूं। ये कैसे अंदर से बुराई निकलेगी? ये किसी पीर के हाथ में हाथ देने से निकलेगी। और पीर वो होता है जिसको फैज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला, जिनका